welcome to the next video of area related to circles. Today we will solve exercise 12.1. Let's begin with the first question. The first question says that the radius of two circles is 19 centimeter. So capital R is one circle has the radius this. Let me take the another circle as small r and the radius is 9 centimeter. Find the radius of a circle which has a circumference. We have to find another radius of another circle. Radius of circle, suppose I take this as x, which has circumference equal to, so circumference of circle is equal to sum of circumferences of both the circles. So suppose this is circle 1, this is circle 2, and suppose this is circle 3. So can I say circumference of circle 3 is equal to circumference of circle 1 plus circle 2. So circumference of circle 3 is pi. Formula of circumference is 2 pi r, children. So 2 pi x is equal to 2 pi capital R plus 2 pi small r, right? Can I take, now here is a time saving trick. Don't calculate anything, children. Just cancel it out. Take common and cancel it out. ये logic मैंने आपको surface area में भी सिखाया था. तो x is equal to, now put the values. Capital R की value 19, small r की value 9. तो x कितना आ गया? 9, 9, 18, 1, 28 centimeter. This is your first question, right? Similarly, let's do the second question. Second question क्या कहता है? Again, radii ये given है. Find the radii of the circle whose areas, who's having area equal to the sum of areas. मतलब अब circumference की जगह can I say area यानी कि pi r, मतलब x square is equal to pi capital R square plus pi small r square, children. Put the, again can I take pi common? तो अंदर क्या रह जाएगा? कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर. अगेन पाई एंड पाई गेट्स कैंसिल. सो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, दिस इज 19 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, राइट? नाउ यू कैन सॉल्व, दिस कैन बी सॉल्व मैथमेटिकली वेरी इजीली, राइट चिल्ड्रन? सो दिस विल बी, अगेन आपको स्क्वायर करना आता ही, आई एम सॉरी, दिस इज 8 and 6 children, not 1 minute, let me just change it. Rather than putting in question number 2, I thought even values are same. No, values are different. So 8 and 6 का square. So 8 का square 64 and 6 का square 36. So under root of 100, which is what? 10 centimeter. So there is no need to calculate anything. So you can see that in question number 1 and 2, I have followed the shortcut. I have saved time because मैंने common लेके cancel out कर दिया है, right? That is question number 1 and 2 for you. Let's do question number 3, children. Okay, let me move this part. Question number 3 देखते हैं क्या कहता है. Question number 3 says, okay, 12.3, figure 12.3 depicts an archery target marked with its 5 scoring regions from center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of each region is represented by representing gold score is 21 centimeter. तो जो third question, जो diameter of gold region है, that is 21 centimeter. We don't want diameter. So can I say this implies जो radius होगा that will be, children, 21 by 2 centimeter. बिकॉज आपको पता है डायमीटर क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल के पूरे सेंटर से पास करती है, मतलब ये, और हमें उसका हाफ चाहिए, तो दैट विल बी रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर. तो ये आ गया. अब फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 रिंग्स. अगर हर बैंड जो है वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड है. नाउ व्हाट इज द width of each band is 10.5 centimeter. Now check here. Can I say, पहला चीज
एरिया ऑफ गोल्ड बैंड जो हमें निकालना है, यानी कि गोल्ड बैंड मतलब सर्कल. सो दैट इज व्हाट, पाई आर स्क्वायर, आर गोल्ड का लगेगा, राइट. सो दिस इज डायरेक्ट आंसर. ये तो बहुत क्लियर है, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना. पाई इंटू this can be 10.5 का whole square, right? Let it be 10.5 centimeter. So here when you put the value of pi, you will get your answer as 346.5 centimeter square. This is for the gold one. Now let's talk about second band, that is area of red band. Now you have to be careful children and have a look at the figure. कैन यू सी, जो रेड वाला है वो तब आता है जब हम पूरा रेड वाला सर्कल गोल्ड वाला उसमें से हटा देंगे. सो कैन आई से इट इज एरिया ऑफ रेड सर्कल माइनस एरिया ऑफ गोल्ड सर्कल, राइट चिल्ड्रन. सो एरिया ऑफ रेड सर्कल अब के लिए हमें रेड सर्कल का पाई रेडियस ऑफ रेड सर्कल का स्क्वायर माइनस पाई रेडियस ऑफ गोल्ड सर्कल का स्क्वायर. तो ये तो हमें पता ही है, रेडियस ऑफ गोल्ड. रेडियस ऑफ रेड सर्कल क्या आ जाएगा, लेट मी शो यू हियर. रेडियस ऑफ रेड सर्कल विल बी 10.5, मतलब इसका रेडियाई प्लस इसका रेडियाई जो विड्थ ऑफ द बैंड है, जो कि कितनी है 10.5 सेंटीमीटर ईच बैंड. सो इट इज 21 सेंटीमीटर. सो if you want we can take, right children, pi common और यहाँ पे क्या आ जाएगा, this is 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर. now again ये simplify, let me just make this. again इसको simplify करने का क्या शॉर्टकट है चिल्ड्रन, you remember मैंने बोला था आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. so a माइनस b into a plus b rather than finding out everything. So it will be pi, this is 10.5, ये add up हो जाएगा 31.5. Just multiply all this and you will get your answer for the next region, that is what will be your answer children, it will be 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. सो सिमिलरली जैसे मैंने ये रेड का निकाला है, आप सिमिलरली आगे भी सारे पार्ट खुद कर सकते हो. जैसे हमें ब्लू का निकालना है तो अब ब्लू का क्या हो जाएगा, पाई रेड रेडियस ऑफ ब्लू माइनस पाई रेडियस ऑफ रेड सर्कल, राइट. सो अगेन पाई कॉमन आ जाएगा, रेडियस ऑफ ब्लू सर्कल क्या हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ ब्लू हो जाएगा रेडियस ऑफ रेड सर्कल प्लस 10.5, राइट. सो ये हो गया 31.5 का स्क्वायर माइनस रेडियस ऑफ रेड हमें गिवन ही है, दैट इज 21 का स्क्वायर. सिमिलरली जब हमें ब्लैक निकालना है, ब्लैक वाले के लिए पाई आर ऑफ ब्लैक को BL लिख लेते हैं माइनस पाई आर ऑफ ब्लू. सो ब्लैक का कितना हो जाएगा, 31.5 में भी 10.5 और ऐड हो जाएगा, राइट चिल्ड्रन. सो दिस इज 2, राइट, 42. सो यानी कि 42 का स्क्वायर माइनस 31.5 का स्क्वायर. अगेन सेम वे में सॉल्विंग, आपके पास ब्लैक का आ जाएगा. सिमिलरली फॉर वाइट it will be pi capital R square of white minus pi capital R square of black. So again pi common, ये कितना आ जाएगा, again radius of white कितना आएगा, radius of black, that is how much, 42 plus 10.5, right children. So this is 52.5 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर. अगेन सेम वे में सॉल्व करके बाकी सारे एरियाज आ जाएंगे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. नाउ फॉर द नेक्स्ट पेज लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4.
क्या कहता है? द व्हील ऑफ अ कार हैज अ डायमीटर ऑफ 80 सेंटीमीटर ईच. डायमीटर ऑफ द व्हील अगेन गिवन है कितना? 80 सेंटीमीटर. हमें क्या चाहिए? रेडियस. रेडियस हमें पता ही है, अगेन डायमीटर बाय 2 होता है, यानी कि 40 सेंटीमीटर आ जाएगा. हाउ मेनी रेवोल्यूशंस, हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज द व्हील मेक इन 10 मिनट्स? उन्होंने बोला है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालनी है कितना? इन 10 मिनट्स. इफ speed of car is how much? 66 किलोमीटर पर आवर. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है. स्पीड ऑफ द कार का मतलब क्या होता है? कैन आई से, अगर मैं एक लेमैन लैंग्वेज में बात करूं, कैन आई से 1 घंटे के अंदर in 1 hour the car is traveling 66 किलोमीटर डिस्टेंस. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय स्पीड ऑफ द कार, है ना. जब हम बोलते हैं कि हमें 60 की स्पीड से चलना है, यानी कि 1 घंटे में मुझे 60 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो वो यूनिट से पता चल जाता है. तो इन 1 hour 66 किलोमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड, राइट. सो लेट्स कैलकुलेट. 1 hour मतलब हमें मिनट्स की बात कर रहे हैं, तो कैन आई से 60 मिनट्स. सो कैन यू टेल मी 1 मिनट के अंदर यूनिटरी मेथड अगर मैं यूज़ करूँ तो 66/60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल होता है, और हमें निकालना है कितने मिनट्स में? 10 मिनट्स के अंदर. सो 10 मिनट्स के अंदर कितना डिस्टेंस होगा? 66/60 इंटू 10. सो दिस इज 6 1 6. सो डिस्टेंस कवर्ड इज 11 किलोमीटर इन 10 मिनट्स. मतलब कार 11 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है 10 मिनट में. लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालना है. What do you mean by revolution? Don't you think revolution का मतलब होता है कि ये जो है, मतलब जो कार है वो कितना, रेवोल्यूशन मीन्स ए पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, राइट. जो कार है वो कितना पेरीमीटर कवर करती है एक रेवोल्यूशन में. लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट. कैन आई से इन 1 revolution the distance covered is 2 pi r, children. That is the perimeter. So it is 2 into pi. Again the value of pi is not given, let it be ऐसे ही रहने देते हैं. रेडियस हमें गिवन है 40. सो कैन आई से इट इज 80 पाई, चिल्ड्रन. लेकिन यूनिट क्या है? सेंटीमीटर. और यहाँ पे क्या है? किलोमीटर. कैन बी कन्वर्ट दिस किलोमीटर इनटू, हमेशा बड़े को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना चाहिए. तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन 100. तो अब ये सेंटीमीटर हो गया. तो अब आप चेक करिए अगेन यूनिटरी मेथड, क्या कि 80 पाई सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर होता है 1 रेवोल्यूशन के अंदर, राइट. सो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कितना कवर होगा कितनी रेवोल्यूशन में? 1/80 पाई रेवोल्यूशन, राइट. सो हमें कितना निकालना है? 11 1 2 3 4 5 zeros. इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस कितनी रेवोल्यूशन में कवर होगा? 1/80 पाई इंटू 1 2 3 4 5, राइट. दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ पाई, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4375 revolutions, right. So this is what is the value, this is what is the revolution which is covered, number of revolutions in 10 minutes जो कि car travel करेगी. That is question number 5. It was a very very important hot question, children. इसमें लॉजिक तो लग रहा है लेकिन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके लॉजिक लगा है. फॉर्मूला तो वही लगा है 2 पाई आर, लेकिन इसमें आपको बेसिक लॉजिक लगाना पड़ा कि पहले स्पीड को आपने इंटरप्रेट किया, फिर आपने इसमें यूनिटरी मेथड 2 बार लगाया. सो दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन इज अ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन करते हैं. अगेन क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत ही आसान है. Take the answer, correct answer for the following. Just justify your choice. If the perimeter of the circle, perimeter मतलब 2 pi r, is numerically equal to the radius. If perimeter and the area, sorry, if perimeter, वही मैं सोचूं कि r से इक्वल हो जाएगा तो क्या आएगा ये?
If perimeter is equal to the area of circle, area is pi r square. If perimeter and the area of circle are numerically equal, then what is the radius? ये तो बहुत simple है. पाई एंड पाई कैंसिल आउट हो गया, एक आर और एक आर कैंसिल हो गया, तो आपको आर दिख ही रहा है कितना आएगा, 2 यूनिट. सो यू कैन सी द करेक्ट चॉइस, इट इज 2 यूनिट्स. राइट चिल्ड्रन. सो बेसिकली कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 पाई आर पुट किया, एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर पुट किया और मेरा आर की वैल्यू आ गई. That is the first exercise for you, which was very simple. If you have any doubt, kindly mention in the comment below.